The flying machine. In 400 AD, Emperor Wen held his throne by the Great Wall of China, and the land was green, with rain readying itself toward the harvest. At peace, the people in his dominion were neither too happy nor too sad. 400 ईस्वी में सम्राट युआन ने चीन की महान दीवार के साथ अपना सिंहासन संभाला था और बारिश से जमीन हरी थी। खुद को फसल की तरह तैयार किया। शांति से उसके राज्य में लोग ना तो बहुत खुश थे और ना ही बहुत दुखी। Early in the morning of the first day of the first week of a second month of a new year, Emperor Wen was sipping a tea and fanning himself against a warm breeze when a servant ran across the scarlet and blue garden tiles, calling, "Oh, Emperor, a miracle!" "Yes," said Emperor Yuan. "The air is sweet this morning." "No, no, a miracle," said the servant, blowing quickly. सम्राट युआन चाय की चुस्की के साथ गर्म हवाओं का आनंद ले रहे थे जब एक नौकर लाल और नीले रंग की बगीचे की टाइल्स के बीच से भागता हुआ आया और बोला, सम्राट, सम्राट, एक अद्भुत चमत्कार। हाँ, सम्राट ने कहा, आज सुबह की हवा प्यारी है। नहीं नहीं, अद्भुत चमत्कार, नौकर ने जल्दी से झुकते हुए कहा। और ये "And this tea is good in my mouth. Surely that is a miracle." "No, no, your excellency." "Let me guess then. The sun has risen and the new day is upon us, or the sea is blue. That now is the finest of all miracles." "Excellency, a man is flying." "What?" The emperor stopped his fan. "और ये चाय मेरे मुंह में अच्छी है। निश्चित रूप से ये एक चमत्कार है." "नहीं नहीं महामहिम, फिर मैं अनुमान लगाता हूँ। सूर्य उदय हो चुका है और एक नया दिन है। ये समुद्र नीला है। अब ये सभी एक चमत्कार से अच्छा है, सबसे अच्छा चमत्कार है महामहिम। एक आदमी उड़ रहा है।" "क्या?" सम्राट ने अपना पंखा बंद कर दिया। "I saw him in the air. A man is flying with wings. I heard a voice call out of the sky, and when I looked up, there was a dragon in the heaven with a man in its mouth, a dragon of paper and bamboo, colored like the sun and the grass." "Do you mean a man has been flying?" "What nonsense! It is early," said the emperor, "and you have just wakened from a dream." मैंने उसे हवा में देखा, एक आदमी को पंख लगाकर उड़ते हुए। मैंने आकाश से पुकारने की आवाज़ भी सुनी, और जब मैंने ऊपर देखा तो वो स्वर्ग से एक ड्रैगन था, जैसे जिसके मुंह में एक आदमी था। कागज और बांस का एक ड्रैगन जो सूरज और घास की तरह के रंगों का था। "क्या तुम्हारा मतलब है कि एक आदमी उड़ रहा था?" "क्या बकवास है। सुबह हो गई है," सम्राट ने कहा, "और तुम अभी तक सपने में ही हो." "It is early, but I have seen what I have seen. Come and you will see it too. Sit down with me here," and said the emperor. "Drink some tea. It must be the strange thing. If it is the true to see a man fly, you must have time to think of it. When I must have time to prepare myself for the sight." They drank tea. "यह जल्दी है, लेकिन मैंने जो देखा वही बता रहा हूँ। आइए आप भी देख लीजिए। मेरे साथ यहाँ बैठो," सम्राट ने कहा। "थोड़ी चाय पियो। ये अजीब बात है। अगर ये सच है, एक आदमी को उड़ते हुए देखना, आपके पास इसके बारे में सोचने का समय होना चाहिए। यहाँ तक कि मेरे पास ये दृश्य को देखने के लिए खुद को तैयार करने का समय भी होना चाहिए।" ये कहते हुए उन्होंने चाय पी। "Please," said the servant at last, "or he will go on." The emperor rose thoughtfully. "Now you may show me what you have seen." They walked into the garden, across a window meadow of grass, over a small bridge, through a grove of trees, and up a tiny hill. "There," said the servant. The emperor looked into the sky, and in the sky, laughing so high that you could hardly hear his laugh, was a man. And a man was clothed in bright paper and reed and make wings
and a beautiful yellow tail, and he was soaring about like the largest bird in the universe of bird, like a new dragon in the land of ancient dragon. कृपया चलिए, नौकर ने आखिरी बार कहा, नहीं तो वो चला जाएगा। सम्राट बहुत सोचते हुए खड़े हुए। अब तुम मुझे दिखा सकते हो तो तुमने, अच्छा चलो, तुम जो दिखा सकते हो तो तुमने देखा। वो एक बगीचे में चले गए, एक घास के मैदान में, एक छोटी सी पुल के ऊपर, पेड़ों के झुंड के मध्य से, और एक छोटी पहाड़ी के ऊपर। वहाँ नौकर ने कहा। सम्राट ने आकाश में देखा और आकाश में इतनी जोर से हंस रहा था कि आप शायद उसे सुन सकते हैं। वो आदमी है। आदमी को चमकीले कागज और बांस की पत्ते में पंख और सुंदर पीले पूंछ बनाने के लिए पहनाया गया था, और वो पंछियों की ब्रह्मांड में सबसे बड़े पक्षी की तरह उड़ान भर रहा था, प्राचीन ड्रैगन की भूमिका में एक नए ड्रैगन की तरह। The man called down them from the high in the cool wind morning. I fly. The servant went to him. Yes, Empire Wind did not move. Instead, he looked at the Great Wall of China, now taking shape in the farthest mint in the green hill, that splendid snake of stones which reaches with majesty across the entire land. He saw that wonderful wall which had protected them for a timeless time from the enemy attack and preserved peace for uncountable years. उस आदमी ने सुबह की ठंडी हवा में उन्हें ऊपर से नीचे की ओर पुकारा। मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। नौकर ने उसकी और हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ। सम्राट युवा शांत खड़े थे। इसके अलावा वो चीन की महान दीवार को देख रहे थे, जो अब हरी भरी पहाड़ियों से दूर से धुंध में आकार ले रही थी, जो पत्थर की शानदार सांप की भांति थी, जो पूरे देश में राजसी ठाठ के साथ थी। उसने उस अद्भुत दीवार को देखा जिसने उन्हें दुश्मन के हमलों से कालातीत समय में के लिए सुरक्षित किया था और बेशुमार वर्षों तक शांति बनाए रखी थी। द ग्रेट चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। So the town nestled to itself by a river and a road and a hill began with weekend. उसने देखा कि शहर जो एक नदी और एक सड़क और एक पहाड़ी के बीच बसा था, जाग रहा था। Tell me, he said to his servant, has anyone else seen this flying man? I am the only one, Excellency, said the servant, smiling at the sky, waving. The Empire watched the heaven another minute and then said, call him down to me. उसने नौकर से कहा, बताओ मुझे, क्या किसी और ने उस उड़ते हुए आदमी को देखा है? सिर्फ मैंने, महामहिम, नौकर ने कहा। आकाश की ओर मुस्कुराते हुए कहा। सम्राट ने आकाश की तरफ एक और मिनट देखा और कहा, उसे मेरे पास बुलाओ। वो नीचे आ। Oh, come down, the Empire wishes to see you, called the servant, hand-capped and his shouting mouth. The Empire glanced in all directions while the flying man called down the morning wind. He saw a farmer early in the field watching the sky and noted where the farmer stood. आओ, नीचे आओ, सम्राट की इच्छा है तुम्हें देखने की, तुमसे मिलने की। अपने हाथों को मुंह पर रख के हिलाते हुए नौकर ने कहा। जब उड़ता हुआ आदमी सुबह की ठंडी हवा में नीचे उतर रहा था तो सम्राट ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसने अपनी खेतों में सुबह एक किसान को देखा जो आकाश को देख रहा था, और उसने देखा कि किसान कहाँ खड़ा है। मैन alight with a rustle of paper and a click of bamboo reed, he came proudly to the Empire, climbed in his rig, and at last bowed before him. What have you done? demanded the Empire. उड़ता हुआ आदमी कागज की सरसराहट और बांस की बेत के साथ नीचे की ओर उतरता है। वो सम्राट के पास गर्व से आया, बेढंगे तरीके में, और अंत में उसने उसके सामने झुका। ये तुमने क्या किया? सम्राट ने पूछा। I have flown in the sky, your
Excellency, replied the man. What have you done? Said the empire again. I have just told you, cried the player. You have told me nothing at all. The empire reached out thin-handed to touch the pretty paper and bud like skill the appearance and smell cool of the wind. It is not beautiful, Excellency? Yes, too beautiful. It is the only one of the world, smiled the man, and I am the inventor, the only one of the world. I swear it. Who else? None of this. पास में उड़ कर आया हूँ, महामहिम आदमी ने जवाब दिया। ये तुमने क्या क्या? सम्राट ने दोबारा पूछा। मैंने अभी आपको बताया है, उड़ने वाला आदमी जोर से बोला। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। सुंदर कागज को और पक्षी की तरह जहाज के तल को छूते हुए छूने के लिए सम्राट का हाथ पहुंच गया। ये हवा की ठंडी खुशबू है। क्या ये सुंदर नहीं है, महामहिम? हाँ, अति सुंदर। ये पूरी दुनिया में एक ही है और मैं इसका आविष्कारक हूँ। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरी दुनिया में केवल एक। मैं कसम खाता हूँ, इसके अलावा और कौन जानता है? कोई नहीं। Not even my wife, who would think me and with the sun. She thought I was making a kite. I rose in the night and walked to the cliff far away, and when the morning breeze blew and the sun rose, I gathered my courage, Excellency, and leaped from the cliff. I flew, but my wife does not know of it. मेरी पत्नी भी नहीं और वो मेरे बेटे भी नहीं, दोनों मुझे पागल समझते हैं। वो सोचती है कि मैं एक पतंग बना रहा हूँ। मैं रात को उठकर और दूर चट्टान पर चला जाता था, और जब सुबह की हवा चलती थी तो सूरज उगता था। मैं अपना साहस अनुभव सारा समेट कर चट्टान से छलांग लगा देता था। मैं उड़ता था, ये मेरी पत्नी नहीं जानती है। For her then, said the empire, come alone. हाँ, तो उसके लिए अच्छा है, सम्राट ने कहा, साथ आओ मेरे। They walked back to the great house. The sun was full in the sky now, and the smell of the grass was refreshing. The empire, the servant, had pushed within the hug garden. The empire clapped his hand. Oh guard, the guard come running. Hold this man. The guard seized the flyer. Come the executioner, said the empire. What is this? cried the flyer. Beyond, what have I done? He began to weep, so that the beautiful paper approached Rustle. वे वापस महल चले आए। अब आकाश सूरज की किरणों से भर गया था और घास की खुशबू ताज़ा थी। सम्राट, नौकर और उड़ने वाला आदमी से विशाल बगीचे के भीतर रुके। सम्राट ने ताली बजाई और सैनिक दौड़ते हुए आए और आदमी को कैद कर लिए। सैनिक ने उड़ते हुए आदमी को कैद कर लिया। जल्लाद को बुलाया, सम्राट ने कहा। जल्लाद को बुलाओ, सम्राट ने कहा। ये क्या है? उड़ने वाला आदमी बेसुध हो गया। मैंने क्या किया है? उसने रोते हुए रोना शुरू कर दिया ताकि सुंदर कागज का उपकरण खराब हो जाए। ये is a man who had made a certain machine, said the empire, and yet asks us what he can created. He does not know himself. It is the only necessary that he create, without knowing why he has done so or what these things will do. ये आदमी है जिसने ये उपकरण बनाया है, सम्राट ने कहा, और फिर इससे पूछता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। ये खुद नहीं जानता। ये आवश्यक है कि वो बिना जाने ही कोई वस्तु कैसे बना सकता है। ये वस्तु क्या काम करेगी? The executioner came running with a sharp silver axe. He stood with his neck, large moused arm ready, his face covered with a screen white mask. One moment, said the empire. He returned to the nearby table upon which sat a machine that he himself had created. The empire took a teeny golden key from his own neck. He fitted his key to the teeny, delicate machine and whipped it up. Then he set the machine going. जल्लाद एक तेज धार वाली चांदी की कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा। वो अपने मजबूत भुजाओं के साथ तैयार था। उसका चेहरा एक शांत सफ़ेद मुखौटे से ढका हुआ था। एक क्षण, सम्राट ने कहा। वो एक पास की मेज की तरफ मुड़ा
और जिस पर एक उपकरण रखा था जिसको उसने खुद बनाया था। सम्राट ने अपनी गर्दन से एक छोटी सुनहरी चाबी निकाली। उसने अपनी चाबी को उस छोटे नाजुक उपकरण में लगाया और उसे चाबी ऊपर से खोल दिया। फिर उसने उस उपकरण को चलने के लिए छोड़ दिया। The machine was a garden of metal and jewel set in motion. The birds sang in teeny metal tree, elves walked through miniature forest, and teeny people ran in and out of the sun and shadow, fanning themselves with miniature fan, listening to teeny embits bird and standing by impressing small but tinkling fountain. It is not beautiful, said the empire. उपकरण धातु और जवाहरातों का एक बगीचा था। चलाने पर पक्षियों ने छोटे धातु के पेड़ों में गाया, भेड़िया छोटे छोटे जंगलों में मध्यम से चलने लगे और छोटे लोग धूप में छाए में बाहर भीतर अंदर होने लगे, भागने लगे। छोटे पंखों से खुद को हवा करने लगे, छोटे पक्षियों को सुनते हुए और छोटे लेकिन तेज शोर वाले फव्वारे के साथ खड़े हो गए। क्या ये सुंदर नहीं है? सम्राट ने कहा। If you ask me what I have done here, I could answer you well. I have made birds sing, I have made forest murmur, I have set people to walking in this woodland, enjoying the leaf and shadow and song. That is what I have done. अगर तुम मुझसे पूछो कि मैंने ये क्या किया है तो मैं तुम्हें अच्छी तरह जवाब दे सकता हूँ कि मैंने पक्षियों को गाने योग्य बनाया है, मैंने जंगलों की गुनगुनाहट बनाई है, मैंने लोगों को इस भूमि में चलने के लिए निर्धारित किया है, पंछियों और छाया गीत को आनंद लेने के लिए तैयार किया है। ये सब है और मैंने इन्हें बनाया है। वो एम्पायर प्लेग द फिल्टर on this knee, the tears pouring down of his face. I have done a similar thing. I have found beauty. I have flown in the morning wind. I have looked down in the sleeping house and garden. I have smelled sea, even it still beyond the hill from my high place, and I have soared like a bird. Oh, I can't say how beautiful it is there. The sky with the wind about me, the wind blowing me like a feather. They are like a fan and way sky smell in the morning, and how free one feels. That is beautiful, empire. That is beautiful too. लेकिन आओ सम्राट, इस आदमी ने अपने घुटनों के बल बैठकर अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए फरियाद की। मैंने भी एक ऐसा ही काम किया है। मुझे भी सुंदरता मिली है। मैं सुबह की हवा में बह रहा हूँ। मैंने सभी सोते हुए घरों को, बगीचे को देखा हूँ। मैंने अपने उच्च स्थानों से समुद्र और खुशबू भी ली है और समुद्र की खुशबू भी ली है, और यहाँ तक कि पहाड़ियों से के परे भी मैंने देखा है, और मैंने एक पक्षी की तरह उड़ान भरी है और ये नहीं कह सकता कि ये कितना सुंदर है। आकाश में हवा के साथ हवा मुझे यहाँ पंख की तरह उड़ा रही है। जिस तरह मैं सुबह आसमान में खुशबू आती है और कितना मुक्त अनुभव करता हूँ। ये सुंदर है सम्राट, ये भी सुंदर है। Said the empire sadly, I know it must be true, for I felt my heart move with the air in I wonder, what is this like? How does it feel? How do you distant pool look from so high, and my house and servant like ant, and how the distant town yet awake? हाँ, सम्राट ने दुखी होकर कहा, मुझे पता है कि ये सच होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अपने दिल की धड़कनों महसूस की और अचंभित हूँ कि ये कैसा है, ये कैसा महसूस होता है। इतनी ऊंचाई से सुंदर से तालाब कैसे दिखते होंगे, और कैसे चोटियों की तरह मेरी महल और नौकर, और कैसे चींटियों की तरह कैसे दूर के शहर जो अभी तक नहीं जागे वो। And spare me, but there are times, said the empire more sadly, when one must lose a little beauty if one is to keep what little beauty one already has. I have not fear you, but I fear another man. What man? Some other man who, seeing you, will build a things of bright paper and bamboo like this, but the other man will with the evil face and evil heart, and the beauty will gone. It is the man I fear. Why? Who is
to say that someday just such a man in just an episode of paper and read might not fly in the sky and drop hug stone upon the Great Wall of China, said the empire. No one moved or said the world off with his hand, said the empire. The exclusive willed his silver axe, burned the kite and the inventor body and buried their ashes together, said the empire. The servant retreated to obey. हाँ, तो मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है, सम्राट ने कहा और भी ज़्यादा दुखी होकर, जब एक छोटी सी सुंदरता पहले ही खो गई हो तो मुझे उससे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे एक और आदमी से डर लगता है। कि कौन आदमी? कुछ अन्य आदमी जो तुम्हें देखकर इस तरह कागज़ और बांस की एक चीज़ का निर्माण करेंगे, लेकिन दूसरे आदमी के पास बुरा नीयत और बुरी दुष्ट दिल होगा तो वो सुंदरता चली जाएगी। ये वो आदमी है जिसका मुझे डर है। क्यों कौन कहता है कि किसी दिन बस कागज़ और बांस की एक ऐसी उपकरण, ऐसा आदमी हो सकता है, आकाश में नहीं उड़ सकता और चीन की महान दीवार पर भारी पत्थर गिरा सकता है, सम्राट ने कहा। कोई एक और भी नहीं शब्द नहीं बोलेगा और सब स्थिर हो गए। दो सम्राट ने कहा। जल्लाद ने अपनी चांदी की कुल्हाड़ी से वार किया। पतंग और आविष्कारक के शरीर को जला दो, उसकी राख को एक साथ दफन कर दो, सम्राट ने कहा। नौकर पालन करने के लिए पीछे हट गए। Turned into his hand servant who had seen the men flying. Hold your tongue. It was all a dream, a most sorrowful and beautiful dream. And the farmer in the stand field who also saw him into would pay him a consider if only a vision. If ever the world passes around you and a farmer die within the air, you are merciful empire. सम्राट नौकर की ओर मुड़ के, जिसने उसे उड़ने वाले आदमी को देखा था, तुमने अपनी ज़बान बंद रखना है। ये सब एक सपना था, एक बहुत दुखद और सुंदर सपना। और वो किसान जो दूर के खेत में था, उसने भी उसे देखा था। उसने कहा कि वो अपनी एक सिर्फ एक नज़ारा माने। यदि कहीं ये बात आपको पता चली या सबको पता चली तो किसान और नौकर दोनों ही एक क्षण में मार दिए जाएंगे। आप बहुत दयालु हैं, सम्राट नहीं, बहुत दयालु हैं, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। नो, नॉट मर्सीफुल, सेड द एम्पायर। बियॉन्ड द गार्डन वॉल द सो द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर एंड रीड्स दैट स्मेल्स मॉर्निंग वीड। ही सो द डार्क स्मोक climb into the sky. No, only very much beyond and afraid. He saw the guard digging a teeny pit where to bury the ashes. What is the life of one man against those a million other? I must take solace from this thought. नहीं, दयालु नहीं, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। बगीचे की दीवार से परे उसने सैनिक को कागज़ और बांस के खूबसूरत उपकरण को जलाते देखा। जो सुबह की हवा में खुशबू थी, उसने आसमान में काले धुएं का गुब्बारा देखा। नहीं, केवल बहुत दुखी और भयभीत, उसने सैनिक को राख को दफनाने के लिए एक छोटा गड्ढा खोदते हुए देखा। 10 लाख लोगों के खिलाफ एक जीवन क्या है? मुझे उस विचार से सबक लेना चाहिए। The key from its chain about his neck, and once more would be a beautiful mountain, miniature garden. He stood, look out across the land and the great wall, the peaceful town, the green field, the river stream. He signed the teeny garden, wearied, hidden, and delicate machines. And then he said, bright blue and yellow color, flying in the small sky. Oh, said the empire, closing his eyes, look at the beauty bird, look at the bird. उसने अपनी गर्दन की चेन से चाबी ली और एक बार फिर सुंदर छोटे से बगीचे को चला कर छोड़ दिया। वो महान दीवार, शांतिपूर्ण शहर, हरे भरे खेत, नदियाँ और नालों के बीच की भूमि को देख रहा था और वह छोटे बगीचे से अपनी छुपी हुई और नाजुक उपकरण को पुष्टि की और खुदी गति में किया। छोटे लोग जंगल में चल रहे थे। सुंदर चमकदार धब्बेदार चमक में मध्यम से और छोटे पेड़ों के बीच उच्च गीत और चमकीले नीले और पीले रंग के छोटे टुकड़े उड़ते उड़ते उस छोटे आकाश में थे। ओह, सम्राट ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, पक्षियों को देखो, पक्षियों को देखो। थैंक यू।